Yes, sir. Okay, so see in Morningstar, what we can do is we can check what are his holdings. Okay, and when I say what are his holdings, means number of mutual funds. Okay, and we can see how much is the overlap happening in the portfolio. Okay. Overlap means what are the common stocks in the portfolio. So if you see Invesco India large cap, 53%. Now 53% of the large cap portfolio is same with Invesco India tax plan. Okay. मतलब 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो सेम ही है टैक्स प्लान का और इन्वेस्को लार्ज कैप का. So we have to look for higher percentage like Mahindra, Pragati Fund and Invesco large cap. Okay. 63% of the portfolio is same. Okay. So the point that we can drive is there is no need to have such a long list when 50-60% of the portfolio, the new fund that you're buying, is going to buy the same stocks. Okay. Okay. So how to read this? See, let's say 57%. Okay. Canara Robeco Flexi Cap इसके साथ देखने का महिंद्रा के साथ. तो कैनरा रोबेको का भी 57 पोर्टफोलियो सेम ही है महिंद्रा के साथ. और वही चीज तुमको ये 59% में देखूंगा तो लार्ज कैप के साथ सेम है. Which means he can reduce the number of funds because he is buying the same stock. Okay. Number one. Yes. I hope you have followed. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो एक चीज हम ये बता सकते हैं क्लाइंट को. दूसरा, return of his investments versus the benchmark, respective benchmark. जैसे हर एक स्कीम का individual as per the scheme prospectus benchmark रहता है. Okay. So ABSL has an S&P 200, BSE 200 as a benchmark. Okay. YTD basis pay from January 2022 till now, the fund has underperformed 13% against the benchmark. Okay. If you look at slightly longer tenure, 1 year basis pay, it has underperformed 10%. Oh. So basically what we can tell a client is that, see, you have an advisor who's managing it, okay? And the performance basically can be cyclical. Sometimes it may outperform, sometimes it may underperform, okay? But we are not saying that what we are going to choose is going to always outperform. But we can always tell the client that we track this very closely, okay? We speak to fund management, and if we see persistent negative trend against the benchmark, it's better to be in the index. Or I suggest you something alternative where you can save on expense ratio and possibilities that we can give, provide as good as benchmark return by investing into the benchmark or identify something new. Okay. So मैंने हर एक स्कीम का उसके इंडिविजुअल बेंचमार्क के सामने परफॉर्मेंस आपको कंपैरिजन दिया हुआ है. 1 year, 3 year, 5 year बेसिस और 10 year बेसिस भी दिया हुआ है. तो कस्टमर को अगर ये 1 year पे ही अपन थोड़ा फोकस करें ना, तो आप देखो हर एक स्कीम, ऑलमोस्ट एवरी स्कीम हैज अंडरपरफॉर्म द बेंचमार्क. So you can tell the client that, sir, what is the point of being an active fund, okay, where you're paying a higher expense ratio and it's underperforming the benchmark. हेलो. हाँ, सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन एक था. एक तो बेंचमार्क जो है आपने मैन्युअली सिलेक्ट किया है फंड पे से भी? नहीं, मैन्युअली हमने नहीं सिलेक्ट किया. ओके. मॉर्निंगस्टार ने ये मॉर्निंगस्टार ने प्राइमरी बेंचमार्क जो हर एक स्कीम का एज पर स्कीम प्रोस्पेक्टिव रहता है ना, उसके साथ कंपेयर किया हुआ. ओके. ये बेंचमार्क हमने नहीं बनाया. जैसे बीएसई फ्लेक्सी कैप है, अगर उसका तुम स्कीम प्रोस्पेक्टस या उसके वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो उसका स्कीम बेंचमार्क ही ये है S&P 500. ओके. तो मॉर्निंगस्टार के सिस्टम ने ऑटोमेटिक उसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ है. करेक्ट. फाइन. दूसरा क्वेश्चन था, अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाइंट अभी प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, उसके ब्रोकर ने या एडवाइजर ने रिसेंटली रीशफल किया होगा. ओके. तो उस केस में 3 या 5 साल के रिटर्न देख के भी ये दिखा के मतलब नहीं है ना. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली उसने रीशफल किया होगा.
अगर रीशफल रिसेंटली किया है तो उल्टा ज्यादा इनफैक्ट बात करना चाहिए कि व्हाई इज योर एडवाइजर नॉट ट्रैकिंग द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 years and 5 years. If the scheme is consistently underperformed, why did he choose to invest in the scheme? ओके 3 years 5 years में भी वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है और रिसेंटली उसी फंड में लिया है तो ओके आप ही बताओ ना, अगर कोई स्कीम जैसे मोतीलाल फ्लेक्सी कैप हो गया, अगर वो स्ट्रगल ही कर रहा है कंसिस्टेंटली, अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली पास्ट नंबर पे नहीं जाओगे. यू विल हैव टू सी these are all past figures. What will help is understanding the current portfolio of the scheme. बराबर. Okay. करंट पोर्टफोलियो से आपका व्यू क्या है मार्केट के रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड, और जो फंड मैनेजर उसका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. Okay, if you are comfortable and you are comfortable with the stock selection, the future may be different. But at the moment, there is no software which can tell you what is going to be the future. Future. True. Software is going to tell you what is the past and what is the current portfolio. True. अगर आपका व्यू समझो आईटी पे स्ट्रांग है तो आप ऐसे फंड सिलेक्ट करो जहां पे आईटी एलोकेशन ज्यादा हो. Okay. Okay. See, and this is where a software can help you to identify schemes which are in line with your view and your thought process. Okay. Okay. Got it? Okay. Yeah. तो अपना एक व्यू होना भी जरूरी है और अपने व्यू के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो. सिलेक्ट कर सकते हैं. Yeah. अच्छा, और एक चीज नितिन, Yes. इसमें है ना कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है. Okay, which I feel, which I don't know what is your thought process, but I think every client, specifically this client who has 80% of the portfolio in market, he should have equity exposure in the international market. And now is a good time, right? Everything is down, to have an exposure in international market. Okay. So if you know, I don't know what is the background of the customer. अगर उसकी समझो daughter है, children है, and he's planning for future education of the children. So you can always tell the client के boss 2013 में $60 था, आज 80 हो गया है. 50,000 फीस, अगर $50,000 फीस सेम ही है, समझो फीस इन्फ्लेशन से बड़ा नहीं है. उस टाइम भी $50,000 था ग्रेजुएशन का, आज भी 50,000, लेकिन you will end up selling so much of dollars. So why don't you invest through fund of fund, number one, or we can buy direct stocks in the international markets or ETFs in the international market, which will help to protect from the rupee fall against the dollar, and it will create a hedge. तो ये भी आप position कर सकते हो. See, this is where you as an advisor play a role because you are looking at a larger picture. Yes. Yes. Okay. एक अभी तुम इसको एडवाइजरी में ऑनबोर्ड करने वाले हो कि डिस्ट्रीब्यूशन में ऑनबोर्ड करने वाले हो, दैट विल डिपेंड ऑन हाउ योर डिस्कशन गोज विद द क्लाइंट. नहीं, मेरा एंटायर बिजनेस एडवाइजरी है. आई डोंट हैव. तो एडवाइजरी कर रहे हो तो उसको अगर आप बोलो कि तुम बेंचमार्क में इन्वेस्ट करोगे और ETFs और ये सारी चीजें लोगे जिससे आपका ये मार्केट अंडर परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं, एक्सपेंस रेशियो बच जाएगा, तो एवरी ईयर यू विल सेव ऑलमोस्ट 1 or 2%. यस. उसका चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इस पे कोई क्वेश्चन है? नहीं सर. अभी ये जैसे नागराज ने पूछा कि ये आपने 1 साल का बताया, हम 2 साल का या 3 साल का भी बता सकते हैं. अभी क्या है, ये है ना 3 साल का भी है. हाँ, 3 साल का है और 5 साल का भी है. चैलेंज क्या होता है, ये जो यूजर है ना, मतलब गांव के लोग हैं और उनको मतलब एडवाइजर इज लाइक अ रिलेशन रादर देन मोर अबाउट रिटर्न्स. उसने मेरा सेव किया इतना, वही मेरे लिए काफी है. that kind of thought process रहता है. But that's why I want to show the report कि what value addition your advisor is doing, what we can do. Absolutely. तुमको ये नहीं बोलना है कि वो बरोबर नहीं कर रहा है, तुमको यही बोलना है कि तुम क्या कर सकते हो बस. बराबर. Yes. How you can look at things differently and how it can add value. यही बोलना है. यही बोलना है. फिर एक और एक रिपोर्ट है which shows a snapshot कि उसका पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन क्या है. डोमेस्टिक इक्विटी 83% है, इंटरनेशनल 0 है, फिक्स्ड इनकम में 7% है और 9% कैश. ये कैश बेसिकली क्या है मालूम है? अपना लिक्विड फंड और वो पोर्टफोलियो के अंदर जो कैश रहता है ना 5% 6%, वो मिला के टोटल 9% कैश है. मतलब ये पोर्टफोलियो अगर तू देखने जाएगा ना नितिन, तो पूरा 90% इक्विटी एक्सपोजर है, 85 to 90%.
अब उसमें उसका लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है, स्मॉल कैप कितना है, ये सब इधर दिया हुआ है। बराबर है। फिर यहाँ पे यू कैन सी सिक्लिकल स्टॉक्स, सेंसिटिव स्टॉक्स, मतलब एवरी कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल पोर्टफोलियो में हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में 0 है। ये नॉर्थ अमेरिका, ओके, हाँ बराबर, एशिया इमर्जिंग है, बराबर। नॉर्थ अमेरिका मतलब तेरा अमेरिका और ब्राजील और वो सब हो गया। यूरोप में कुछ नहीं है। ग्रेटर मतलब एशिया बोले तो पूरा इंडिया में ही है इसका पोर्टफोलियो। बराबर अगर चाइना रहता तो एशिया डेवलप में कुछ आता था। बराबर। ठीक है, ये इसके टॉप 10 होल्डिंग्स है। फिर ये एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि risk to reward ratio of the portfolio, and this is for a 3-year basis. Okay. 3-year basis पे what has been the standard deviation of the portfolio versus the benchmark. तो अगर तू देखेगा स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा रहेगा ना, that means the portfolio is taking higher risk. Okay. So portfolio has taken a standard deviation of 20 and delivered a return of 13.5%, assuming these holdings were the same for last 3 years. ठीक है, बिकॉज अपने पास ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट नहीं है, उसका कैश स्टेटमेंट है। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट रहता तो निकल सकता था क्या? नहीं, वो डिफिकल्ट है थोड़ा, तो अपन इसी पे फोकस करते पहले, क्योंकि वो चीजें कैसे है मालूम है, फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो तू ये देख के रिस्क ज्यादा लिया है, परफॉर्मेंस कम है। ओके, मीन इज द रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द रिस्क, और बेंचमार्क का देखिएगा ना, रिस्क इज लोअर एंड द रिटर्न इज हायर। यस, ये चीजों पे तुझे फोकस करना है बस। ठीक है, ठीक है। देन कम्स योर ओके वैल्यूएशन मैट्रिक्स, अगर वो तुझे समझाना है तो। दूसरा उसका क्रेडिट क्वालिटी ब्रेकडाउन, व्हिच इज मोस्टली 85% ट्रिपल ए, व्हिच इज वेरी गुड। ओके, ये डेट का है ना पूरा सब? हाँ, ये पूरा डेट का पोर्टफोलियो ना? ये पूरा डेट का है। ये जो मैंने तुझे दिया ना ऊपर, ये पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस वाइज है। और फिर यहाँ पे इक्विटी का लेफ्ट में है और डेट का राइट में है। ओके, ये मिक्स है। यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी जो तुझे दिख रहा है ना, ये और इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी, ये पूरा डेट का पोर्शन है। ठीक है, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो इज 2.23। ओके, see, so he's paying 2.5%, and on an aggregate basis his portfolio is performing, let's say, 5 to 6% lower than the index. तो 7% का नुकसान हो रहा है ना भाई। ओके, वो कैसे निकाला आपने? अरे वो तो अपन ने यहाँ पे देखा ना, मैं तो तुझे यहाँ पे जो नंबर दिखाया है, ये अपन ने वो एवरी स्टॉक बेसिस पे देखा ना कुछ हमने। मतलब हाँ, स्कीम बेसिस पे बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखा ना ये अपन। हाँ, ओके, वो वाला। हाँ, वो वाला। अरे यार, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, तो ये वाला। हाँ, ये वाला। यस, 1 ईयर बेसिस वाला। ठीक है, ठीक है। इसमें पता नहीं एग्रीगेट बेसिस पे नहीं दिया है, बट तू बोल सकता ना 1 ईयर बेसिस पे सबका अगर 3 to 5% डाउन है, तो बोल के भाई 3-4% एवरेज तुम्हारा अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क के सामने। 2% तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो है, तो ओवरऑल 5-6% तो जा ही रहा है ना। 5% ओवरऑल अंडर परफॉर्म कर रहा है। 5% 75 लाख के सामने मल्टीप्लाई करके दिखा दे। जब वो 2-3 लाख सुनाई देगा ना कस्टमर को, तो समझेगा कि नहीं यार नुकसान हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। देन हिज ऑल स्कीम लास्ट 1 year, 3 year, 5 year परफॉर्मेंस। ओके, इसमें कुछ बताने लायक? नहीं, कुछ नहीं है, ये तो सिंपल डेटा है, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। बस तो ये 3-4 चीजें हैं। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई हैव सेंट टू यू। हाँ, और एक चीज आई डोंट नो, तू अगर तुम्हारा कोई मॉडल पोर्टफोलियो है, समझा, जैसे मेरा मॉडल पोर्टफोलियो, ठीक है, तो मैंने उसको कंपैरिजन किया है कि हैड यू इन्वेस्टेड इन आवर स्ट्रेटजी, हाउ इट हैज परफॉर्म्ड वर्सेस हिज इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो मेरे में कैसा है कि ये जो स्ट्रैटेजी है एक्चुअली ये एग्रेसिव है। मैंने इसको मॉडरेटली एग्रेसिव, मतलब
80-20 में कंपेयर किया और एक्चुअली इसका 80-20 रेशियो ही है अभी फिलहाल इक्विटी डेट का। बराबर। तो मैंने एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया। अब मेरे 80-20 में कैसा है कि 10 to 15% इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ओके। So you can always tell the client by taking a diverse view, okay, by ensuring by investing into products which are low on expense ratio, having let's say index exposure, selecting quality active portfolio. As you could see, on an average, this is the difference in performance. Yeah, 3% डिफरेंस आ रहा है annually. अरे कंपाउंडिंग में बहुत फर्क पड़ता है ना। ये तुमने 10,000 वैल्यू डाला है ना तुम्हारा? हाँ, वो ऐसे ही 10,000, उसको 1 करोड़ भी डाल सकता हूँ, 75 लाख भी डाल सकता हूँ, लेकिन अपने को क्या है 50 लाख करके भेजो या 1 करोड़ करके भेजो ना। ये खाली क्या है कि इससे तुझे ये पता चलता है कि अभी जैसे 1 करोड़ होता तो ये 1.4 करोड़ होता, 1.57 करते। ओके, ये सिंपल है। ओके, हाँ बराबर, ठीक है, हाँ वो वैसे हो गया, हाँ बराबर। अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ, ग्राफ पे कंपैरिजन दिखाना है सिर्फ कि कंपेयर टू मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट पोर्टफोलियो। तो ये 4 चीजें हैं मेरे हिसाब से सफिशिएंट है टू शो योर क्वालिटी, यू नो हाउ यू लुक एट द पोर्टफोलियो, हाउ इट कैन हेल्प। और कुछ तुम्हें चाहिए तो मुझे बताओ। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। दैट इज इनफ फॉर यू, व्हाटएवर यू शोड अस, दैट इज इनफ। एंड उतना ही दिखाना ज्यादा मतलब बेहतर वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको मतलब पहली मीटिंग है मेरी उसके साथ, तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू एडिशन वी आर गोइंग टू डू। मतलब उन्होंने बोला है कि देख ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, यहाँ से काफी कुछ कचरा निकल सकता है। ओके, दूसरा, अंडर परफॉर्मिंग स्कीम अगेंस्ट द बेंचमार्क को पकड़ना है, ठीक है। तीसरा, अगर तू पैसिव स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल फंड्स डालता है तो ये तेरा लिस्ट है ना 19 के जगह पे 8 to 9 में ही खत्म हो जाएगा। ओके, ओके, ओवर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा ना, तो कॉमन चीजें निकल जाएगी, बहुत सारे कॉमन चीजें काफी निकल जाएगी। और देखिए ये जो है ना महिंद्रा वाले, आई डोंट नो दिस गाय, बट आई एम श्योर ये छोटे फंड हाउसेस है तो इसका ब्रोकरेज दबा के अच्छा रहेगा। अच्छा, बराबर, ठीक है। देख तेरा महिंद्रा का 4 स्कीम है इसमें, बराबर। नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो वो ऐसे हाँ, इन्वेस्ट को भी अच्छा ब्रोकरेज देता रहेगा। तो ये सब चीजें अपने को क्लाइंट को नहीं बतानी है, अब उनको क्या बताना है, अंडर परफॉर्मेंस, स्कीम ओवरलैपिंग। अपने को सामने वाले को ये नहीं बोलना है कि वो गलत कर रहा है, कि वो तुम्हारा हाई ब्रोकरेज के लिए कर रहा है, बिकॉज क्या होता है देन यू आर within your own profession you are telling that that guy is not good or he is doing not the he's not doing correctly। आप बोलो कि ये सारे टूल्स मेरे पास है जो मैं 15 मिनट में आपका पूरा पोर्टफोलियो, 15 मिनट मत बोलना, मत, within a couple of hours I can analyze your entire portfolio and tell you where do you stand and what we need to do. Great. So not only you have tools which can help you, but you also have view on the market and you are open to all sorts of ideas, not only active but passive international investments which can help him. Absolutely. और वो तो सर पैसिव में कैसा है मालूम है, ये स्कीम जब 2%, 3% चार्ज करता है ना एक्सपेंस रेशियो, पैसिव सिर्फ 10 पैसा देता है। बट अगर ये स्कीम अंडर परफॉर्म ही कर रहा है बेंचमार्क के सामने, तो उसको 3%, 2% क्यों देना है एक्सपेंस? देखिए क्या मतलब है, सिंपली उसको बेंचमार्क पे भी रख सकते थे, मतलब पैसिव फंड में तो भी वो रिटर्न बन जाता। करेक्ट। सो दिस इज हाउ आई थिंक वी इफ वी कैन, और मैंने ना आपसे सारी चीजें सिंपली शेयर की है जो आप भी समझ सकोगे और आप क्लाइंट को भी अच्छे से समझा सकोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम आवेश, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच सर, वेरी इंसाइटफुल एंड आवेश। इंफॉर्मेटिव। थोड़ा सा मुझे ना आपका है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च प्रोसेस, मतलब अभी तक मैंने बोला था iFast का यूज कर रहा था, तो मुझे जैसे आपने मॉडल पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया है ना, तो हम पैरामीटर मेरा डिसाइड करता हूँ, तो मुझे कैसे वो मॉडल पोर्टफोलियो मॉर्निंग शाम में जैसे आपने चार्ट दिखाया ना कि हम हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, ऐसे मैं बनाता हूँ पहले, और बराबर है क्या, या तुम्हारा कुछ थॉट रहेगा, या तुम ये पॉइंट्स ऐड करो, ऐसे एक मीटिंग में मतलब एक चाहता हूँ आपसे, मतलब अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद। यस यस,
तो यहाँ पे देख, मॉडल पोर्टफोलियो मैंने 5 कैटेगरी के बनाए हुए हैं। Okay. अग्रेसिव 100% अग्रेसिव, मॉडरेटली अग्रेसिव 80-20, बैलेंस 50-50, ठीक है, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो 100% डेट। और मेरे हर एक मॉडल पोर्टफोलियो में हम लोग ने एक सेट एलोकेशन रखा हुआ है, और उस एलोकेशन में अकॉर्डिंगली हमने स्कीम्स आइडेंटिफाई किए। ओके, ग्रेट। और ये चीजें है ना, मैंने 2020 से शुरू की है, तो मैं क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि लास्ट 3 इयर्स में अगर हमारे साथ किया रहता तो हाउ हैज द मॉडल पोर्टफोलियो परफॉर्म्ड वर्सेस द बेंचमार्क। अभी हम पिछला 10 साल का नहीं डाल सकते क्या ऐसे मॉडल पोर्टफोलियो बना के? मैंने 2012 में बनाया था मॉडल पोर्टफोलियो, तो अरे उसके बेटा देख क्या है, हाँ, तू अगर तेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर करेगा ना, हाँ, तो बोलेगा अपने को तो कभी पता ही नहीं है। तो तू आज शुरू कर रहा है तो आज से ही कर, ओके, ऐसा है, ओके। और उसको आज शुरू कर रहे हैं तो उसको बता कि ये चीजें हमने 1 साल पहले का लिखा ना, लास्ट 1 ईयर में जो मैं स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, हाउ इट हैज आउट परफॉर्म और हाउ इट हैज अंडर परफॉर्म। ओके, अपन स्कीम ऐसी नहीं सिलेक्ट करेंगे जिसने सबने आउट परफॉर्म किया और फिर मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे। तुमको जो स्कीम पे, द स्कीम्स दैट यू नॉर्मली रेकमेंड, वही सबको पकड़ो, एसेट एलोकेशन डिसाइड करो, और फिर उसको आप बताओ कि कैसे परफॉर्म किया है। और यस मंथली बेसिस पे तुम दिखा सकते हो फिर अपने क्लाइंट्स को कि दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। यस यस, ठीक है। इसमें और भी पीएमएस का डिटेल्स, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, बट ये बाद में कवर करते हैं। आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज तुम्हारा जो क्लाइंट मीटिंग है ना अभी, ठीक है ना? यस 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 यस, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। आई होप दिस डेटा वुड हेल्प यू। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक्स यार, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। या थैंक यू सर, बाय।